So now here is an example of expected return of a portfolio. ठीक है? And then we will be using the same example to find out the risk of that portfolio. ठीक है? But right now we are only finding out the expected return of the portfolio. Now just like I said, इसमें दो चीजें हैं, weights और expected return. If expected return of the individual assets are not given to you, then you will have to find out the expected return first. और expected return हमने क्या कहा था कि is the same as expected return is the same as मीन, वो मीन के बराबर है, आपने वो मीन फाइंड आउट करना होगा. ठीक है? ओके, ये भी हो गया. एक बार आपने मीन फाइंड आउट कर लिया तो उस मीन की फिगर्स यहां पे उसे डायरेक्टली आपको दे दी, व्हिच मींस एक्सपेक्टेड रिटर्न की फिगर्स यहां पे आपको दे दी हैं, आपने सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, सिंपली. ओके, क्या क्या है आपके पास? यू आर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक डी एंड स्टॉक VW फ्रॉम अर्ली. सो नाउ इट्स अ पोर्टफोलियो ऑफ टू स्टॉक्स ओनली. बस सिर्फ दो स्टॉक्स, आसान. ठीक है? 3 हो 4 हो तो आपकी वर्किंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी. ओके, आगे जाएं. You are investing 2000 in stock B and 3000 in stock D. 2000 and 3000. So that means your total investment is 5000. So that means when you are calculating weights, you will have to take the total as 5000. Okay, ये भी हल हो गया. आपके पास दो हैं, एक है stock BW which is 2000 and stock D which is 3000. The total is 5000. So if you want to find out the weights, तो weight आप किस तरह find out करेंगे? 2000 divided by 5000 multiply by 100. This will give you the weight, the percentage. और अगर multiply by 100 नहीं करेंगे तो आपको points में दे देगा. अगर points में देंगे तो दोनों equal to 1 आएगा, और अगर percentage में देंगे तो दोनों equal to 100% आएगा. ठीक है? Clear? Okay. So for the first one, what is the weight? 40. So 40% is actually 0.4 or 40%. The next one is 3000 divided by 5000 multiplied by 100. This should be 0.6 ताकि ये 1 के बराबर है. ठीक है? Okay. अगर आ रहा है इसका तो आपकी कैलकुलेशन सही है. So next step is you multiply the weights with the expected return. अब इनके expected returns कितने हैं? Remember that the expected return and standard deviation of stock BW is 9% and 13.15%. Right now we are not concerned with standard deviation. इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए. ठीक है? Right now we are concerned with only the expected return, which is 9%. Yes sir. ठीक है? 9% इसका expected return आ गया. 9%, which is equal to 0.09. Okay, ये भी हो गया. Respectively, the expected return and standard deviation of stock D is 8% and 10.65%. Stock D का 8% है, which means it is equal to 0.08. अच्छा. अब आपने क्या करना है? You need to find out WR, and I will have to do it over here because I don't have enough space. WR. So that means weight multiply by expected return. ठीक है? So 0.4 multiply by 0.09. You will get the figure over here. 0.036. 0.036 and 0.6 multiply by 0.08. 8 6 are 48. 0.048. Yes sir. ठीक? The total will be the summation. G. 8 and 6 14. 4 and 3 7 8.084. यही आ रहा है? Yes sir. Okay. 0.084 which is equal to 8.4. तो इस पोर्टफोलियो का, पूरे पोर्टफोलियो में दो चीजें होता है. इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपके पास 8.4%. अभी इसी का हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आज है. यहां तक क्लियर हो गया? ये कल का था जो आपने एग्जांपल नहीं किया. क्लियर है क्लास? Yes sir. 8.4%. सही है? Yes sir. Okay. So now let's talk about standard deviation of portfolio. Okay. So let's talk about portfolio का standard deviation या portfolio का risk. Portfolio का risk किस तरह find out होगा? इस तरह से. ठीक है? थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, एक थोड़ा lengthy है, खतरनाक नहीं. Okay. So let's find out. Standard deviation of a portfolio. हम उसको कहते थे इससे पहले कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिक्योरिटी आई. अभी हम लोग कह रहे हैं कि नाउ दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो बी. ये किसके बराबर है?
अब दोबारा चले जाए उसी पे जब आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग कर रहे थे, तो आप लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट किया। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा। व्हाई? बिकॉज़ नाउ वी हैव मोर देन वन सिक्योरिटी, व्हिच मींस वी हैव अ पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो है तो आपको पता है कि पोर्टफोलियो में वेट्स हैं, किसी पे आप ज्यादा पैसे लगाते हैं, किसी पे आप कम पैसे लगाते हैं, ठीक? तो ये वेट्स एक्चुअली डिसाइड कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है? तो आपने सबसे पहले ये वेट्स फाइंड आउट करने हैं, जो मैंने यहाँ पे कर दिए थे। यस सर। ठीक, वेट्स फाइंड आउट हो गए। फिर आपने क्या करना है, आपने वेट्स को एक वेट, दूसरा वेट, और फिर ये एक और चीज आ गई, ये क्या चीज है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये था, स्टैंडर्ड डेविएशन तो इस तरह होता है, जे और के का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जे और के का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्टेट्स में पढ़ा था वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन सर, बाकी ये जो आप अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पॉपुलेशन नहीं है, पोर्टफोलियो है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं कोवेरिएंस, क्योंकि ये दो डिफरेंट चीजें, ठीक है? देखिए वहां पे था सिंपल ना, सिक्योरिटी। यहां पे आप कह रहे हैं ये सिग्मा ऑफ जे एंड के व्हिच आर टू डिफरेंट सिक्योरिटीज। जे अलग सिक्योरिटी, के अलग सिक्योरिटी। जिस तरह हमने यहां पे दो अलग अलग सिक्योरिटीज की हैं, BW और D, ये दोनों अलग अलग सिक्योरिटीज हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कोवेरिएंस। नाउ व्हाट इज दिस कोवेरिएंस? अब ये कोवेरिएंस क्या चीज है, ठीक है? ये तो आपको क्लियर है ना कि ये एक का वेट और ये दूसरे का वेट, ये क्लियर है आपको? यस वेट ऑफ J, वेट ऑफ K, यस सर। ये मैंने यहां से फाइंड आउट किए 0.4 एंड 0.6। अगर ये तीन होते तो 0.4, 0.4 में भी और 0.2, इस तरह कुछ फिगर्स होते हैं, ठीक है? 1 के इक्वल आते, तीन होते। तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा और वर्किंग करनी पड़ती है। पहले टू एसेट्स पोर्टफोलियो सीखते हैं, उसके बाद 3 एसेट्स पोर्टफोलियो सीखते हैं, ठीक है? ओके, पहले 2 एसेट्स पोर्टफोलियो, दोनों के वेट्स आपने ले लिए। फिर आपने उसका फाइंड आउट करना है कोवेरिएंस। अब ये कोवेरिएंस क्या कहते हैं? कोवेरिएंस बिटवीन रिटर्न्स ऑफ these two securities, यानी ये दो सिक्योरिटीज का रिटर्न आपस में किस तरह बिहेव करता है। चलें, कीप इट सिंपल, किस तरीके से बिहेव करेगा। अब ये कोवेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, चलो कोवेरिएंस, हाउ डू यू फाइंड आउट द कोवेरिएंस? You find out the covariance of any two security by taking the standard deviation of these two securities. इसका standard deviation हम लोग find out, which means the standard deviation of J and then the standard deviation of K, और फिर उसको multiply हम लोग करते हैं with R। अब ये याद है क्या चीज था? The return स्टार्ट में याद नहीं? इसको हम लोग बोलते थे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन याद है? ये तो नहीं पढ़ा। कोरिलेशन नहीं पढ़ा? ना सर। सिंपल वर्ड से बताओ, दो चीजें, कोई भी दो वेरिएबल्स, ये एक साथ मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और किस हद तक मूव कर रहे हैं? क्या ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा? क्या ये कम होगा तो ये कम होगा? दोनों का एक साथ बिहेव। क्या ये ज्यादा होगा ये कम होगा? इस तरह भी तो हो सकता है ना, एक ज्यादा और ये कम होगा, जी? So RJK is the correlation coefficient between J and K acid. अब ये जो RJK है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब एक और चीज है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो ये बात याद रखिए कि मैंने आपसे कहा कि ये इसके रिलेशनशिप को शो कर रहा है, that means क्या ये दोनों एक साथ मूव करते हैं? If they do, then that means the correlation coefficient is positive, ठीक है? Positive and it is perfect positive. तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो +1 होगा, यानी अगर इसमें एक चेंज आए तो इसमें भी एक चेंज, एग्जैक्टली सेम चेंज, और दोनों प्लस एक डायरेक्शन। और अगर ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन हो, इसमें एक चेंज आए, इसमें एक नेगेटिव चेंज आए, तो ये हो जाएगा -1, परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है? सो परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, और अगर दरमियान में होगा तो इसमें नो कोरिलेशन, 0 अगर हो गया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू वुड लाई बिटवीन -1 एंड +1। सर इसमें पॉइंट्स में आते हैं, आ सकते हैं, मतलब -0। हां ऑब्वियसली आएगा ना सर फिर
आएगा। परफेक्ट नहीं आएगा। परफेक्ट तो नहीं है, फिर इसका मतलब ये है कि अगर इसमें एक चेंज आ रहा है तो इसमें 0.5 का चेंज आ रहा है। ये नो कोरिलेशन। ठीक है, नो कोरिलेशन तो ये होगा कि इसका चेंज और इसके चेंज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। 0%। तो सर ये परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन तो वो होगा कि अगर इसमें एक का पॉजिटिव चेंज आया, इसमें भी एक का पॉजिटिव आया, परफेक्ट पॉजिटिव। और अगर ये उल्टी डायरेक्शन में हो जाए तो परफेक्ट नेगेटिव। अगर 0.5 चेंज आएगा 0.5 आएगा तो इसका फिगर 0 और 1 के बीच में आया। तो सर फिर तो परफेक्ट नहीं होगा ना, फिर नहीं पॉजिटिव तो फिर positive correlation, then it will be called as positive correlation. So we have a positive correlation, we have a negative correlation, no correlation, then a perfect positive and a perfect negative. Perfect would mean +1 -1, 0 would mean no correlation. ठीक है, और बाकी ज्यादा जो भी आएगा। ओके, ये भी क्लियर हो गया। A standardized statistical measure of the linear relationship between two variables. Remember, over here we are talking about a linear relationship. कोई कर्व शब्द नहीं, सीधी लाइन का रिलेशनशिप। सीधी लाइन वाले रिलेशनशिप के ऊपर ये linear relationship. सही है? क्लियर? यानी जो आपका रिलेशनशिप है वो थ्रू आउट जा रहा है, ये नहीं कि इसका चेंज इसमें चेंज आना शुरू हो जाए और कर्व बन जाए। ठीक है? या पॉजिटिव हो जाए फिर नेगेटिव हो जाए, डायरेक्शन चेंज करे नहीं। ठीक? लिनियर क्लियर हो गया? ये सारा क्लियर हो गया? ये सारा क्लियर है क्लास? इसको आप सॉल्व करना शुरू करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके, सो लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन नाउ। अच्छा, ओके, लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन नाउ। इसमें हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, वेट्स आप लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वेट्स 0.4 0.6 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो बाकी आपको काम कहा था करने को, ये वाला ये करना है। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ये फिगर्स गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो तो क्या आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिक्योरिटी के लिए? यस, किस तरीके से? वेरिएंस समेशन ri माइनस r बार, ठीक है, और फिर इसका होल स्क्वायर, फिर समेशन इनटू b, ठीक है, और फिर इसका समेशन और फिर उसका स्क्वायर। ये याद है सबको? ठीक, ये भी फाइंड आउट कर लेंगे। यस न्यू डेटा बेस। ये अब डिस्क्रीट हो गया, मल्टीप्लाई बाय t कर दो। अब डिस्क्रीट हो गया। यस सर, अब डिस्क्रीट हो गया। ठीक, ओके, सो नाउ यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। इस वजह से मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर आपने वो शुरू की टेबल में एक्सपेक्टेड रिटर्न में गलती कर ली तो वो नीचे आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को हल करेगा, फिर वो नीचे पोर्टफोलियो रिटर्न को हल करेगा, फिर वो नीचे पोर्टफोलियो रिस्क को भी हल करेगा। ठीक, और फिर मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा पेपर चेक करना। मैं पे डायरेक्ट हम फेल हो जाएंगे। आप डायरेक्ट 5 मार्क्स दोगे सर। ओके, अच्छा कर रहे हैं लेट्स डू इट। अच्छा आप तो एक सवाल करवाओ। लेट्स डू इट, फेल लेट्स डू इट। सर हम स्केयर है, स्टेप्स के मार्क्स होंगे। क्यों आप डांस करते हैं? ओके, नहीं इस बार दिस टाइम अराउंड आई हैव गिवन द रिजल्ट टू द अदर सेक्शन, नहीं नॉट द इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस सेक्शन, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेक्शन। और उसमें नहीं, उसमें 60 में 40 फेल है। उसमें okay class, so now we said this is what we need to calculate ना, हमने इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरह, और वो जो फॉर्मूला उधर लिखा था उसका मतलब क्या था, उसमें उस फॉर्मूले में आपको याद है उस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ था? उस फॉर्मूले में क्या लिखा था किसी को याद है? Sum Sir, of देख लेते हैं। देख ले, दोबारा देख ले। WJ ना सम Standard. ऑफ क्या? J One from run from one to n. Sum of j and sum k. of सम ऑफ of j What is and this k. thing? सम ऑफ दोनों का सम दोनों का सम। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इसका मतलब सम है, अभी देखते हैं। दरअसल आप लोगों ने जो मैट्रिक्स बनाई थी ना, कुछ याद है मैट्रिक्स? Yes, sir, yes. 2/2 3/3, Yes sir. ये उस मैट्रिक्स का सम,
ये उस मैट्रिक्स का सम है। अब वो मैट्रिक्स बनाना किस चीज का है? अगर आपके पास दो सिक्योरिटीज है और यहाँ पे मेरे पास दो सिक्योरिटीज है, कौन कौन सा? W, BW and D, BW and D, BW and D. So that means it makes a Matrix. 2 by 2 का matrix. Yes. एक figure है, एक figure है, एक figure है, एक figure है. Yes. So this summation would actually mean to sum all these values. Okay, if it's a 3 asset portfolio, तीसरा asset का नाम रखते हैं C. 3 by 3 हो जाएगा। So it would be a 3 by 3 3 by 3 matrix, which means 9 values and sum of those 9 values. और हर वैल्यू कैलकुलेट किस तरह करनी है? ऐसे Standard deviation of one, standard deviation of the other, multiply करना है, ठीक है? Then multiply with the R, and R was correlation Correlation. correlation coefficient, ठीक है? correlation coefficient से multiply करेंगे, एक वैल्यू करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 9 values, फिर 9 values का sum, और फिर you will be able to get to this one. under the rule। Got the idea? yes sir Start करें अब, ठीक? Yes, sir. Theoretically clear? सर इसका रिजल्ट 1 मिनट में कैसे होगा सर? आप कर लें। सर आप जब पेपर मिले सर 1 मिनट के लिए टाइम देके ये क्वेश्चन एक मिनट एक ना ना मिनट, 30 ना सेकंड अब ऑब्वियसली अगर इसमें 9 वैल्यूज हैं हाँ, सर। तो फिर तो 1 मिनट नहीं होना, फिर तो 9 होगी। सर तो इस तरह लेकिन इस तरह अब अगर डेप्रिसिएशन था तो डेप्रिसिएशन का पूरा क्वेश्चन एक एमसीक्यू तो नहीं था। yes सर sir इसमें 5 डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के ऊपर 5 या 6 एमसीक्यूज थे, तो यही होता है ना, इसका मतलब वो पूरा क्वेश्चन था और पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब समझ आ रही है? इस तरह अगर ये क्वेश्चन होगा तो ये भी 5-6 मार्क्स का होगा। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन बड़ा होगा उसको इतना पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूंगा और हर पार्ट फिर 1 मार्क। आप समझ आ रही है क्वेश्चन? दिस इज हाउ आई मेक द एग्जाम। क्लियर? सर इसमें अगर एमसीक्यूज थोड़ा कम कर दे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा कर, मतलब 5 अब मार्क्स। सर इसकी कैलकुलेशन में थ्योरेटिकल कहां से होगा? नहीं सर, Overall मतलब paper क्वेश्चन इसके बाद अभी सर इसके बाद जब हम जाएंगे ना आगे चैप्टर्स तो वो फिर थोड़े बहुत नॉट थ्योरेटिकल नेचर में इज फाइनेंस। सर मेरा मतलब ये है कि सर एमसीक्यूज थोड़ा कम कर दे सर। हां, और एक पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है ना, तो सर उसमें तो फिर हमें कंफ्यूजन भी होगी कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है सर। अच्छा। एमसीक्यूज में बंदा कंफ्यूज, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं आपको ऑप्शंस ना दूं? सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दे दें क्या सॉल्व करें सर शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब 5 मार्क्स का 6 मार्क्स। अच्छा ठीक है, ओके। सो नाउ instead of MCQs and dividing one question into 5 or 6 MCQs, you want one question Exactly. and with no parts, and I will only write कि ये 5 मार्क का है, इसमें ये फाइंड आउट करें। यस Yes, sir. वेरी गुड, आसान है, इसमें तो स्पेस भी बच जाएगा, इंस्टीट्यूट का भी फायदा है, इंस्टीट्यूट का हमारे लिए भी फायदा है। राइटिंग भी कम होगी, मेरी टाइपिंग भी कम हो जाएगी और Exactly, सर हम तो सर आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। गुड थैंक रिलेशन यू वेरी मच। नॉट ऑफ ओके क्लास लेट्स मूव ऑन, क्लास लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्लास पे अटेंशन नाउ। अब ये मैट्रिक्स है, कैन यू सी दिस वन? यस सर। ओके, ये मैट्रिक्स है, ठीक। इसको हम लोगों ने, इस मैट्रिक्स को हम लोगों को बनाना है, इसको सॉल्व करना है। इसको बनाएंगे किस तरह? दिस इज फर्स्ट सिक्योरिटी एंड दिस इज आल्सो द फर्स्ट सिक्योरिटी, ठीक है। सो वी विल टेक द वेट ऑफ द फर्स्ट सिक्योरिटी एंड देन द वेट ऑफ द सेकंड सिक्योरिटी, व्हिच मींस वेट ऑफ BW and then we will multiply it again with the weight of BW। यस सर। अब यहाँ पे दोनों BW आ रही है, इसमें से आपको दोनों को वेट को BW करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसके बाद you need to find out the of covariance of this and this, ठीक है। अब आ जाए कोवेरियंस पे। अगर मैं आपसे कहूं कि कोवेरियंस ऑफ BW and BW, so this would be equal to standard deviation of BW into standard deviation of BW into correlation coefficient of BW and BW। समझ आ रही है? नहीं? इसको मैं रख करके सारा यहाँ पे दोबारा लिख, सर जरा बोर्ड वाइट कर ले। मैं दोबारा लिख रहा हूँ। सर बोर्ड वाइट हो जाएगा।
Okay, class. Let's have a look at this again. Let's have a look at this. हमने कहा कि हमने फाइंड आउट करना है पोर्टफोलियो का रिस्क। पोर्टफोलियो का रिस्क का जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा वो था कुछ इस तरह का, Sum of. ठीक, which means weight of one into weight of the other into, this is not standard deviation, जब डिफरेंट आ जाए ना तो फिर उसको Covariance. covariance बोलते हैं, ठीक है। so weight of one weight of the other into covariance of these two, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब covariance of anything would be equal to what? covariance किसी भी दो चीजों का किस चीज के बराबर होगा? standard deviation of one standard deviation of the other into Coefficient. correlation coefficient, जो उन दोनों के दरमियान कोरिलेशन को शो करे उसके साथ मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आएगा ये फिगर, इस फिगर को उठाकर इधर रखूंगा, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास मैट्रिक्स में एक वैल्यू आएगी। वैल्यू आई। इस तरीके से अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो 9 वैल्यूज, 2/2 का मैट्रिक्स है तो 4। क्लियर है? So as simple as यहाँ पे As simple as that. Start करें क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कर ले। Okay. Let's start a question on this one. Let's start a question on this one so that तो बुक करना होगा। no option. ठीक? So let's start a question on this one. अच्छा, अब इसको करने की बताने की जरूरत है या नहीं? It's the same thing. यानी बता करूं? अभी तो खैर इसमें फिगर्स नहीं है ना, फिगर्स तो अगले में आएंगी, लेकिन ये क्या है? It's exactly the same thing. 3/3. Weight of this into weight of this into वेट ऑफ correlation. कोरिलेशन covariance of these two, और फिर covariance of these two का मतलब होगा कि covariance of one, covariance of two, Correlation coefficient of these two, ठीक? अब यहाँ पर आ जाए फिर ये एक plus weight of this into weight of this and covariance of these two, फिर covariance में जाए, covariance of these two का मतलब हो गया standard deviation of one, standard deviation of two into correlation coefficient of 180। स्टैंडर्ड डेविएशन सर सबका मतलब सब में सेम ही लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन तो देखिए, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का है तो सेम रहेगा, और अगर 2 का है तो वो भी 2 का सेम रहेगा। फिर अगर एक में 2 है एक में 1 है तो फिर वो अलग लेंगे। तो 2 का पहले आ जाएगा, 1 का बाद में चला जाएगा, सेम आएगा तो सेम। r गिवन होगा, r अगर गिवन नहीं होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जा नहीं कर सकते ना, r गिवन होगा, ठीक है। और इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं। अच्छा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इस तरह सब कुछ करते जाएं। अब जरा थोड़ी देर के लिए इसको गौर से देखिए। अगर मैं w1 को into w1 को मल्टीप्लाई करूं तो इसका क्या मतलब है? स्क्वायर ऑफ स्क्वायर तो w1 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगर w, अब मैं इस तरह डायगोनल w2 W2 स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई बाय दिस। अब यहां पे आ जाए w3 W3 का स्क्वायर इनटू दिस, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब इसी तरीके से इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इन दो फिगर्स को देखिए, यस सर, ठीक है। स्क्वायर w1 मल्टीप्लाई बाय w2 मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस ऑफ 1 ऑफ 1 and 2, और इसको देखिए 2 and 1 w2 into w1। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 करूं या 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, सेम आएगा। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो इसका भी आंसर इसका भी आ जाएगा। 3 और 1 का भी सही है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इजी इजी होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखिए 1 and 3 3 and 1 3 and 1 सेम हो जाएगा, 2 3 3 2 सही है। 1 2 2 1 हो गया, आसान हो गया। यस So now it has become a bit easy. सर इसके साथ एंड में क्या करेंगे? इसके साथ एंड में क्या करेंगे? एंड में आपने करना क्या है? इसके साथ एंड में आपने क्या करना है? हमने क्या कहा था? समेशन। इन सब को सम और फिर उसके बाद दूसरा समेशन स्क्वायर रूट। इसका मतलब सर, वहाँ पर- समेशन का सर वहाँ पर ऐड करने का अपना तरीका होता है ना सर, ये मैट्रिक्स को ऐड करने का तब एक मेथड होता है। नहीं, उसका नहीं करना, उसका नहीं करना।
ठीक है, दूसरा नहीं है। ये वो वाला उस तरह का मैट्रिक्स नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन है। वो मैट्रिक्स आपको समझाया था सिर्फ कि 3/3 का मैट्रिक्स या 2/2 का मैट्रिक्स, ठीक है हाँ, डायमेंशन समझाने के लिए। यस सर। अब अगर डबल समेशन है सो इट मींस सम ऑफ रोज एंड सम ऑफ कॉलम्स, इसको सम कर दे, इसको सम करें, इसको सम करें, इसको यूं करके सम करें, यहां पे फाइनल वैल्यू हो जाए, बस हाथ वो वैल्यू चाहिए, हाथ तरफ से सम करेंगे। वो वैल्यू चाहिए और उस वैल्यू को फिर अंडर रूट करेंगे तो आई गेट दिस। ये जब तक आप करेंगे नहीं आपने नहीं समझ आएगी, करते हैं इसको। That's Yes, sir. it. That's it. That's Okay. it. That's it. अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन याद है? थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया हमने। स्टार्ट करें इसको। Yes, sir. इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बट द थिंग इज ओवर हियर वी हैव ओनली 2। अब फिर इसका करेंगे कि थर्ड की अगर प्रैक्टिस आप लोग करना चाहते हैं तो आज घर जाके आप लोग क्वेश्चन देता हूं, थर्ड की प्रैक्टिस करें आप लोग। अगर आप लोग कर सके तो वेल एंड गुड, अगर ना कर सके तो फिर क्लास में करें, ठीक है? लेकिन आसान है, तरीका तो सेम है। Okay, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वन। Let's start with this one, and these are the figures which are given to you. Okay, you are creating a portfolio of stock D and stock BW from earlier. So now we have two स्टॉप B And BW, B BW. ये आपने मैट्रिक्स बना दिया। अब देखिए, you are investing 2000 in stock B and 3000 in stock D. इसके weights निकाले थे? वेट्स कितने कितने आ रहे थे? 0.4 एंड 0.6। yes sir। ठीक, ओके, ये भी हो गया। आगे जाएं, 0.4 आ रहा था BW का वेट। BW का वेट ऑफ BW इक्वल्स 0.4, वेट ऑफ D 0.6। ये भी हो गया। अब आगे देखिए, Remember that the expected return on the standard deviation of stock BW is 9% and 13.15%. ये जो 9% दिया रिटर्न, ये हमने कहां पे इस्तेमाल किया था? जब हम लोग इसका पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। अभी फाइंड आउट कर रहा हूं पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क के लिए क्या मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न की जरूरत है? ये इससे ज्यादा है? yes sir। अगर मैंने आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन होता और रिस्क का कोई भी मेजर गिवन नहीं होता व्हिच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर आपको जरूरत पड़ती? दोबारा बोलो व्हाट्स इज मेरा बात। एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फिगर्स क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड आउट करनी है, पोर्टफोलियो का रिस्क, पोर्टफोलियो का रिटर्न। Yes. मैंने आपसे कहा कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का, उसकी जरूरत पड़ती है अगर मैं पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड आउट करता हूं, क्योंकि पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला है कि W और एक्सपेक्टेड रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम करेंगे तो वो मुझे मिल जाएगा पोर्टफोलियो का रिटर्न। अगर पोर्टफोलियो का रिस्क फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो क्या वो फिगर ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ऑफ एनी हेल्प टू मी? नहीं। अच्छा, अब अगर पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है व्हिच मींस रिस्क, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है किसी भी सिक्योरिटी का। अब मैंने, इसका मतलब यह है कि पहले मैंने उस सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है। तो जब मैं सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करूंगा तो क्या मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न की फिगर चाहिए होगी? यस। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? लेट अस थोड़ा बहुत My son finding sir. अब तीसरी बात, Brain not brain. अब कोशिश करेंगे इसको ब्रेन समझने। इज नॉट अच्छा, तीसरी बात, Break ले. तीसरी बार से, तीसरी बार इसको गौर से सुने। राइट लगा। ठीक है? भाई इसको गौर से बाकी कौन का लगा के सुनते हैं। अच्छा, दोबारा गौर से। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की फिगर ना हो तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न की फिगर की जरूरत होती है? यस सर। बस सिंपल है। जाओ सफा. इसलिए मैंने इसको समराइज कर दिया। 50 सही है। ठीक है, आसान तरीके में बता दिया, इजी वर्ड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो BW and D, now we have the weights given and we have the return, expected return and standard deviation. So standard deviation of BW
and standard deviation of D. Now what is the standard deviation of BW? Standard deviation BW का कितना है? 9%. 13 point? No. This is return 13.15%. Okay. And standard deviation of D is 10.65%. अब इसका आपने इसका बना दिया मैट्रिक्स। Yes, sir. अब इसमें वैल्यूज पुट करें। अब वैल्यूज पुट करने के लिए गो बैक टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता था? समेशन And WA WB WB and correlation. Correlation correlation नहीं, covariance okay. So now weight of D कितना है? 0.6 into 0.6 into variance क्या है हमारे पास? 13.15. covariance of VW and D ये किधर है? नहीं है? फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? सिग्मा of VW Yes, sir. into standard deviation D into correlation coefficient of BW. and D. Yes, sir. सही है? आप करें। Standard deviation of BW 13.15 into standard deviation of D into correlation coefficient. क्या correlation coefficient आपको given है? No, sir. एक मिनट देखते हैं कहीं ना कहीं तो given होगा। यहाँ and 0.75. Correlation coefficient between BW and D is ये हो गया? So now give me the figure. 105.03. 105.03 यही आ रहा है? यही आ रहा है? Yes, sir. ये आ रहा है? अच्छा ये आ गया, लेकिन ये था BWD का। यहाँ पे आपने DOD का फाइंड आउट करना है। ये तो आपने देखा ही नहीं कि ये तो सर आप BWD का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो DOD का है। तो अगर DOD का मैं फाइंड आउट करूं तो covariance between D and D, तो इसका sigma of D into sigma of D, तो in other words ये क्या हो जाएगा? square. इसका स्क्वायर into R D and D, यानी D सिक्योरिटी को D सिक्योरिटी के साथ मैच करें। Yes, sir. तो D और D को अगर मैं एक साथ मैच करूं उनके रिटर्न्स को तो square same आएगा। सेम आएगा। तो सेम आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये देखें कि D सिक्योरिटी ज्यादा होती है, तो D सिक्योरिटी ज्यादा होती है कि नहीं होती? तो आप कहेंगे दोनों एक ही चीज है, दोनों एक साथ ज्यादा होगी, एक साथ कम होगी। तो इसका मतलब ये इक्वल टू 1। अच्छा सर। सही है? समझ आ गई क्लास? इस पॉइंट की समझ आई? ओके। अब सिंपल इसका मतलब ये है कि जब भी ये सेम आ रहे हो, कोवेरिएंस ऑफ द सेम सिक्योरिटी, तो आपने क्या करना है? सिंपली उनका Square. तो स्क्वायर को क्या बोलते हैं? स्क्वायर को वो बोलते हैं सर वेरिएंस। ये सारे के दस होने में Variance. ओके वेरिएंस हो गई। अब यहाँ पर आपके पास 10.65 है, Yes, sir. तो 10.65 का स्क्वायर which will be 113.42. 113.42। देख लिया? सही है? ठीक है? Yes, sir. ओके। अब इस जगह पे आ जाए। अब यहाँ पे D and BW अब यहाँ पर चेंज आएगा। तो ठीक फिर ये है? हो सो फर्स्ट वेट ऑफ BW 0.4 into 0.6 0.6 into 105. 105.0 ये आ गया। ओके। और आपसे क्या कहा था कि यही सेम फिगर यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर भी आएगा। ठीक है? यही सेम फिगर यहाँ पे किया। इसको सेम लिख लेते हैं 0.4 या इसको सही तरीके से चले। पहले वेट ऑफ D is 0.6 into 0.4 into 105.0। Yes, sir. Again. ये भी हो गया। लास्ट मिनट। अब यहाँ पर आ गए 0.4 into 0.4 into 172. अब BW सेम आ गया, तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा ऑफ BW का 13.15. स्क्वायर है। सो 13.15 का स्क्वायर 172.92.
172.9। अब मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे फिगर दें, इसको मल्टीप्लाई करें, ये फिगर दें, सब फिगर से। ओके सर। जी जीडीए जब आप फाइंड कर रहे थे तो इसमें R1 की इक्वल क्यों है? R1 की इक्वल क्यों आया? हमजा और से दोबारा सुनो। ये हमें किसने बताया? मैंने सर। नाम ज़रक ज़रक यस ओके ज़रक ने बताया। ज़रक ने बताया, मैंने ये कहा सर जरा को मैंने बताया था। सर उठा रहा है। यार हमें बताया दरअसल मैंने बताया मुझे अल्लाह ने सिखाया आगे अच्छा हमने ये कहा कि दो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है दो सिक्योरिटीज का। अब हुआ ये कि जब यहाँ पे दोनों सिक्योरिटी सेम आ गई, ठीक है, डीडी दोनों सिक्योरिटी सेम, यानी मैंने इसके रिटर्न्स और इसके रिटर्न्स देखने कि इस सिक्योरिटी का रिटर्न इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या होगा। अब ये दोनों सिक्योरिटी सेम है तो इसका मतलब ये है कि जितना ये इंक्रीज हो रहा है ये भी इंक्रीज होगा, जितना ये पॉजिटिव इसका मतलब पॉजिटिव 1, ठीक है 1, ठीक। ये बार बार कह रहा है कि वाइट पेज कर देता है Rohit, give me the figure for this one. सर 40.83 40.83. Give me the figure for this one. 0.4 multiplied by 0.6 multiplied by 0.5.6. सर सोर्स के अंदर है 25.20 25.20. इसका फिगर है 25.20 सेम सेम आएगा। यस सर। इसका फिगर multiplied by 172 0.90. 41.50 अब इन सब को ऐड करें। सर ये सब को ऐड करने में वो समेशन दोनों हो जाएगा सर बस अटेंडेंस लेते हैं सर आज के लिए सर ऐड कल कर लीजिए सर अटेंडेंस सर बस आज का इतना सर एक क्वेश्चन फिर आप Grade 70 है सर ये 41 नहीं है सर। क्या 41 नहीं है? ये सर 27 आ रहा है सर ये 0.66 कौन सा? ये सर ये चार यस सर ये 27.6 यस सर 27.5 अब एक और गलती भी की है अभी बताता हूँ। उधर पॉइंट्स में नीचे उसमें मैंने नोट किया सर लेकिन मैंने बोला और उसको भी डिवाइड बाय 100 कर लें। लाइक वो एस्टिमेट हो जाएगा खैर है ओके क्लास आंसर मर लेकिन अभी भी आपके आंसर से मैच नहीं कर सर ये क्यों सर आपने मैंने कहा था सोच के अंदर है सर वहाँ पर जरा 0.4 लिया है सर और हमने 0.6 लिया पहले वाले में। इधर सर इधर ऊपर फर्स्ट है सर फर्स्ट मैं डीडी का D1 वो इधर आ गया ये इधर आ गया एक ही बात फिर एक ही बात है वो इधर चला गया इधर चला गया आगे जाइए देखिए ये हमारा ये आ गया यस सर ये इधर आ गया एक ही बात सम करेंगे सब कुछ सेम ओके क्लास डीबीटी आंसर ऐड करें सबको करीब करीब नहीं मुझे आंसर दे करीब करीब क्या हाँ ना पेपर में भी यही बोलो क्यों गिव मी द एग्जैक्ट आंसर प्लस 25 पॉइंट इंटरपोलेशन करें सर 118.89 वो नहीं आ रहा 118.89 118.89 yes 118.89 डिवाइड कर और इसको 100 से डिवाइड कर दें 1.188 सर हम 1.18 10 की लीड से जा रहे हैं सर नहीं ये आंसर क्यों होता है You must have done something wrong, so let's Somewhere. go back and find it out. somewhere sir सर ये कल कर लेंगे सर सर उन्होंने गलती बताई है ये सारे हम देख 1.26 आ रहा है आपका आंसर कितना आ रहा है? सर 1.18 1.18 और इसको जरा स्क्वायर रूट लें स्क्वायर तो लेना सर सॉरी रूट तो लेना अंडर द रूट करें 1.08 1.08 सही है नहीं सही है 10 का फर्क है 10 का यस सर सर 10 ना फर्क नहीं है खैर सर 10 ये इधर जाओ सर एक ही बात है नहीं
दोनों We need to भाई find out. सर 1-0 का फर्क है सर नहीं, राउंडिंग का फर्क नहीं है। इट शुड बी, आपका फर्क आपका आ रहा है 10.81, इसका आ रहा है 9.1। ये फर्क एक्सेप्टेबल है, लेकिन 10 का फर्क एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने कहीं पे कैलकुलेशन में गलती की है, तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? अच्छा फिर इट्स द सेम मेथड, सारी वैल्यूज भी आपकी सेम है, आपने कहीं पे एडिशन में कहीं पे कोई मिस्टेक की है, ठीक? सो इट्स 10.81। अब इस 10.81 को, अब इसको देखेंगे, ये 10.81 अगर परसेंट आ रहा है आपका, क्लास पे अटेंशन, 10.81 आपके पास पोर्टफोलियो का रिस्क का है। पोर्टफोलियो रिस्क इज 10.81। सो नाउ हाउ इज दिस समथिंग गुड? हाउ इज दिस समथिंग गुड? आपके पास इंडिविजुअल सिक्योरिटी का आपके पास रिटर्न था 9 and 13.15, जो क्वेश्चन में गिवन था। यस सर इसका था 8 and 10.65। लेकिन जब आपने पोर्टफोलियो का फाइंड आउट किया, ठीक, तो आपके पास पोर्टफोलियो का रिटर्न आया 8.64 यस सर और पोर्टफोलियो का रिस्क आया 10.91। अब अगर आप इसको देखें तो आप कहेंगे सर रिस्क भी कम हुआ लेकिन इंडिविजुअल से तो कम नहीं हुआ, यस रिटर्न भी ज्यादा है लेकिन इस इंडिविजुअल से ज्यादा नहीं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप कंपेयर करेंगे आप क्या चीज इस्तेमाल करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन व्हिच इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क, और उसका फॉर्मूला क्या था? रिलेटिव रिस्क ये था, ठीक। अच्छा अब देखें 10.91 and 8.64, इसको आप डिवाइड करें, आपके पास आएगा 1.26। अब हमने ये कहा था कि जितना ये कम है उतनी कंसिस्टेंसी ज्यादा है, उतना रिस्क कम हुआ। सर वही तो इसका मतलब with respect to this return, this is the risk which you are taking, so your relative risk is the lowest. सही है? So that's how you compare different investment opportunities. यस सर थैंक यू सर सर वही इसलिए सर इससे ही आ रही थी। से बिना पूरी